Heading into an intense phase, the Hero Asia Cup has raised the bar with some quality hockey. Harmanpreet Singh and his men are eyeing glory. But now, they are up against Kazakhstan, the final league phase game for them. This is match number 12 of Pool A. भारतीय तिरंगा लहरा भी रहा है, फहरा भी रहा है. फैंस इंतजार कर रहे हैं बस इस एक्शन की शुरुआत का. और आपको काफी प्यार नजर आएगा यहाँ क्राउड से, जैसे आपने देखा. Crowd bringing their love you banners for their favorite players. Although this match has no effect on India's passage through to the next round, but the crowd in Rajgir is not going to lose the opportunity. Zhu Fui and Khamis Al-Balushi are the two officials for today. Ladies and gentlemen, let's get ready, make some noise, and welcome the hockey stars. India wearing the white and orange today. On the left, you see Kazakhstan in their blue jersey. Walking out to the middle, along with what are hopefully some budding hockey players for India in the future. There's the Indian coach, Craig Fulton. He's got a mission in front of him. A victory here in the Asia Cup, the Hero Asia Cup, will take him through to the World Cup. Olga Urmanova, the head coach of Kazakhstan. It's great to see a woman head coach of a men's team. This is really great. पूल स्टेज का आखिरी मुकाबला भारत बनाम कजाकिस्तान. आपके स्क्रीन के बाएं से दाएं तरफ अपने सफेद और ऑरेंजिश कलर के अटायर में भारतीय टीम अटैक कर रही है. तो शुरुआती हाफ में दाएं से बाएं तरफ कजाकिस्तान. जर्मनप्रीत के पास में गेंद है, सर्कल के भीतर मनदीप को ढूंढ रहे थे, लेकिन बैक लाइन को कंट्रोल नहीं कर पाए. Also today, another great experience for Kazakhstan. The fact that they are playing in front of a full house. This is packed. Now India. Is this their first opportunity? Oh, just misses. Dilpreet was there waiting in front of the goal. Couldn't quite get that deflection in. सुखजीत ने गेंद मनप्रीत के लिए बनाई. मनप्रीत ने मनदीप को पास दिया. जो बैकहैंडर आया उसको सिर्फ डिफ्लेक्ट करना था दिलप्रीत को. मनप्रीत बहुत करीब से जा रहे थे. ये देखिए, दिलप्रीत डिफ्लेक्शन के लिए अपने स्टिक को उठाया जरूर, लेकिन किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं. भारत का खाता अभी भी खुला नहीं. अभी तो सिर्फ 1 मिनट का खेल हुआ और जज्बात देखिए जो उमड़ रहे हैं. जिस गति के साथ भारतीय टीम ने अटैक किया है वो काबिल तारीफ. पिछला अवसर अभिषेक ने तो किया था, लेकिन सही समय पे गेंद को सही परिस्थिति में पहुंचा नहीं पाए थे. बहरहाल भारत अभी भी अपने फॉरवर्ड्स पे निर्भरता दिखा रहा है. कजाकिस्तान की टीम को डिफेंड करना पड़ रहा है. कोशिश जरूर है कि मिडफील्ड पे प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग हो. एक बड़ा अवसर है, बैकहैंडर आया और भारत के लिए पहला गोल लाया. हम बात करते हैं कि अभिषेक क्यों एक बेहतरीन खिलाड़ी है. भले पिछले मुकाबले में ये खिलाड़ी हीरो ऑफ द मैच रहा हो, गोल स्कोर ना किया हो, लेकिन आज भारत का खाता खोल दिया. Abhishek has finally got the opportunity to score a goal and get one for himself. He was just inside the circle, decided to go after it with the goalkeeper, possibly trying to charge forward. This is how the ball was actually won back and then passed. Abhishek just got in and thundered that in. Past Yerkubel and Dusan Bekhov. That too on the near post. पार पोस्ट पे जाने की कोशिश नहीं की, एक कड़ा एंगल चुना. एक टॉमाहॉक जो सीधे नियर पोस्ट पे अपने दाईं तरफ छकाता हुआ नजर आया था यजहान को. और अभिषेक के नाम उनका पहला गोल आज के इस मुकाबले का चला जाएगा. ओल्गा उर्मानोवा जो आज कजाकिस्तान की टीम के साथ जुड़ी हैं, चाहेंगी कि कुछ गोल तो इनकी टीम भारत के विरुद्ध स्कोर करे, क्योंकि नेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ा फासला है. भारत की कजाकिस्तान से फिलहाल इस पड़ाव पे तुलना करना हॉकी के खेल में ऐसा है जैसे मानिए सूर्य के सामने आप टॉर्च जगाने को कह रहे हो. But here, is this a chance for India? It is! Abhishek yet again. This man is turning out to be a star at the Hero Asia Cup Bihar 2025. We've also got to see whether Dilpreet has gotten a touch in the end, but the shot was thundered in initially by Abhishek.
सर्कल में गेंद फीड करने का अवसर जहां पहले तो शीलालन लाकरा के पास गेंद थी जिन्होंने अभिषेक तक गेंद पहुंचाई और अभिषेक का शॉट किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं, बस गेंद को रिसीव किया है दिलप्रीत ने। तो अभिषेक ने इस मुकाबले में अपना दूसरा गोल दागा है। पिछली बार गए थे नियर पोस्ट पे, इस बार चुनाव किया फार पोस्ट का। तारीफ शीलानंद की भी जो 2 डिफेंडर से बचाते हुए गेंद अभिषेक तक पहुंचाई थी और अभिषेक ने बिना समय गवाए गोल पोस्ट में धावा बोला। आपने अपनी स्क्रीन के दाएं तरफ उस समय देखा हो तो कुछ बात हुई थी सुखजीत और मकसद के बीच में, दोनों ने एक दूसरे को हाथ से इशारा किया था। जुगराज गेंद लेकर सर्कल में प्रवेश करने की कोशिश में, पीछे सुमित है, आगे रजिंदर को पास दिया है। रजिंदर इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, पेनल्टी कॉर्नर भी मिलेगा। मनदीप खुश होंगे इससे। They've created those constant problems for Kazakhstan here. Was brought in by Rajinder, waited on it, tried to get that in. Mandeep trying to hit that one and looks like it's just taken that foot. Harmanpreet on the first battery, Jugraj on the second. Goes to Harmanpreet and that's saved. What a save! Yerzan Yelubayev. Never easy when it's coming to you at a rapid pace. But he's dived across to his right. The pressure has not averted. And that's an Indian goal. Deflected in by Sukhjeet. So they may have been denied of the penalty corner, but they shaped themselves up well. And ultimately, Sukhjeet finds it into the back of the net. हरमनप्रीत एक बार फिर गेंद के साथ है सर्कल के भीतर। गेंद अभिषेक के लिए बनाई है। अभिषेक ने एक प्रकार की फिरकी बनाई और कमा लिया एक और गोल। आज तो ऐसा लग रहा है कि ये गेंद एक चुंबक है। गोल पोस्ट लोहा और अभिषेक वो खिलाड़ी जो इन दोनों का मिलन करवा रहा है। Wonderful performance by Abhishek. May not have gotten the goals in the previous match, but his performance stood out. Today, he's making up for that of sorts. And I loved what you said when you said that it looks as if the ball is a magnet and the goal is actually just a piece of iron. And he's just ensuring that the magnet goes where it belongs. The angle wasn't quite easy, but he still got it in past the goalkeeper. Said their goodbyes. So that's the kind of camaraderie that hockey also promotes. So I hope that Kazakhstan players also get the opportunity to interact. But there's another penalty corner that's been conceded by Kazakhstan. सर्कल के भीतर इन्हें पकड़ा गया था। सुमित ने बहुत करारा प्रहार किया। जब बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही थी तो टैकल आप इस प्रकार से कर नहीं सकते। यदि तो करेंगे तो फिर खामियाजा पेनल्टी कॉर्नर के तौर पे ही भुगतना पड़ेगा। कैप्टन ने बॉल को साइड किया लेकिन देरी हो चुकी थी। इंजेक्ट करने के लिए अभिषेक है। भारतीय टीम के 2 खिलाड़ी जो इंजेक्टर के तौर पे रहते हैं, या तो अभिषेक और संभव है अगर मैदान के ऊपर पिच पे मौजूद हो तो वो जिम्मेदारी निभाते हैं हार्दिक। It's Jugraj on the first battery and Amit Rohidas on the second. No Harmanpreet, Jugraj, and that's a goal. Jugraj has shot that past the goalkeeper into the net, and India have now moved ahead on the scoreboard. It's 5-0 for them. याद आ रहा है वो पहला मुकाबला जब भारत चाइना के विरुद्ध खेलने आई थी। हरमनप्रीत उस समय मैदान पे पिच पे मौजूद थे नहीं। जुगराज को अवसर मिला और जुगराज ने भारतीय टीम का उस मुकाबले में खाता खोला था। बिल्कुल वैसा किया, हालांकि गार्ड पे लगी है गेंद। दोबारा देखेंगे अगर तो गोली के गार्ड पे लग के और संभवतः फिर डिफ्लेक्ट हुई है, लेकिन एंगल इतना कड़ा था और इतनी तेज प्रहार करते हैं जुगराज की गेंद को रोकना लगभग असंभव। भारत का स्कोर अब 5-0। ये पंजा है भारतीय टीम का। और खेला में जो पिछला विश्व कप था भारतीय टीम क्लासिफिकेशन मैचेस खेल रही थी, यहाँ एक और मौका। पेनल्टी कॉर्नर तो दे ही दिया गया है। सुखजीत बहुत करीब थे और जब इतने सारे डिफेंडर से आप घिरे हो तो कहीं ना कहीं किसी का पांव तो मिल ही जाता है। दिलप्रीत ने क्रॉस लगाया के बाद गेंद जो थी वो सीधे लगी है रुस्तम के पांव पे, जिसकी वजह से भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। अच्छी चीज ये कि हार्दिक भी है, हरमनप्रीत भी है, तो संभवतः
संभवतः इंजेक्शन करने के लिए हार्दिक जाएंगे। हरमनप्रीत हमें पहली बैटरी पे नजर आएंगे। ये रहे इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत, जिन्होंने शुरुआती मुकाबले में हैट्रिक डाली थी, और अमित रोहिदास उनके पास खड़े हैं दूसरी बैटरी पे। गेंद हरमनप्रीत के लिए, उनका ड्रैग फ्लिक है, लास्ट रशर की कोशिश नाकामयाब। हरमनप्रीत के नाम एक और गोल। और इस पूरे संस्करण में एक भी ऐसा मुकाबला नहीं है जब भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल ना किया हो। इजाफों पे इजाफे करते हैं ये भारतीय टीम के स्कोर में। हॉल्ट बेहतरीन था, फार पोस्ट का चुनाव किया। पिछली बार गेंद जरूर पोस्ट पे लग के वापस आई, लेकिन इस बार तीर सटीक निशाने पे। ये गांव बहुत गंभीर करते हैं। भारतीय टीम के कप्तान ने बीट किया कजाकिस्तान के कप्तान, जो आखिरी रशर के तौर पे थे, यर्कबुलान को, और दाग दिया भारत का इस मुकाबले का छठा गोल। और चांस है अभी भी सर्कल में भारतीय टीम। शीलालन लेखरा, अच्छी डिफेंडिंग, अच्छी गोल कीपिंग की गई है। हार्दिक सेंटर पे है, दो विकल्प, दायां या बायां छोर। संभवतः माइनस पास देना पड़ेगा, नहीं, दाईं तरफ इन्होंने विकल्प ढूंढ लिया है। हरमनप्रीत अकेले थे जिन्होंने एक स्लैप लगाई, सर्कल के भीतर पांव ढूंढा, मिल गया भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर का अवसर। यह है मॉडर्न डे हॉकी। इफ इट ऑल यू गेट टू सी योर ओपोनेंट इनसाइड द सर्कल, go for that push on your opponent's leg, on their foot, and that's what they've done. हरमनप्रीत का ये स्लैप तो सीधे रिसीव किया था शीलालन लाकरा ने, और उसके बाद ओपोनेंट टीम के यर्बुलात के पांव पे गेंद को दे मारा। एक और पेनल्टी कॉर्नर। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, इस बार अमित रोहिदास के लिए ड्रैग फ्लिक फॉर वेरिएशन, चकमा दिया, दौड़ दोनों ने लगाई, लेकिन आखिरकार वो हिट अमित रोहिदास ने। ये हिट भी है और अमित सुपर हिट भी। भारत का 7वां गोल। ऐसा लगा कि हरमनप्रीत जाएंगे, लेकिन अचानक से हरमनप्रीत ने गेंद को छोड़ दिया अमित रोहिदास के लिए। संभवतः इसके लिए तैयार नहीं थे। यरजहान अपने दाईं तरफ छलांग लगाई, क्योंकि पिछले 2 गोल हरमनप्रीत ने फार पोस्ट पे किए थे, तो इधर पहले ही कमिट हो चुके थे फार पोस्ट की तरफ। गेंद आई का दाईं तरफ, तैयारी थी बाईं तरफ की। और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आमतौर पे आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यरजहान नहीं, ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। अमित रोहिदास के नाम गोल। एक भी मुकाबला गवाया नहीं। शुरुआत की थी चाइना को शिकस्त देके, फिर जापान के खिलाफ जीत हासिल की, और अब आपके पूल में वो टीम जो एकमात्र जीत की तलाश में है, उसके खिलाफ कितनी बड़ी जीत। हुडर बच चुका है। हाफ टाइम का वक्त, समाप्ति शुरुआती 2 क्वार्टर्स की, और बिल्कुल उसी अंदाज में जिसमें भारतीय टीम, भारतीय कोच और भारतीय फैंस चाह रहे होंगे। मिस्टर कंसिस्टेंट हरमनप्रीत के नाम भी आज गोल है। भारत 7 पे, कजाकिस्तान 0 पे। समय है हाफ टाइम का। Now yet again stealing the ball, taking it forward, Mandeep. There was another chance. Dilpreet is in fact asking for a referral. So India will now go up to check whether a penalty corner can be awarded. Joe, are you looking for a stroke? Play inside foot. Penalty stroke. Okay. They are checking for the possibility of a penalty stroke, just as you have heard the referees talk about it. Initially, Mandeep had got the ball, tried to find Dilpreet then. The goalkeeper was right behind Mandeep on that occasion. Dilpreet wanted to take a hit at it. Now the question is whether it's a penalty stroke. Joe, Yeah. I advise for you. This ball goes to the goal post line. So it's a stroke. India keep the referral. Stroke.
पेनल्टी स्ट्रोक दे दिया गया है। यदि तो गोलकीपर गोल पोस्ट के सामने होते और पांव पे गेंद लगती तो संभवतः सिर्फ पेनल्टी कॉर्नर मिलता, क्योंकि गोलकीपर था ही नहीं, गोल पोस्ट पूरा खुला पड़ा था और सामने डिफेंडर के पांव पे जाके गेंद लगी है। का सीधा मतलब ये कि पेनल्टी स्ट्रोक का अवसर। एक बार पेनल्टी स्ट्रोक मिला था, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने लिया था और वहां मिस कर गए थे। यहां अवसर है जुगराज के पास। Now Jugraj Singh, can he get this one in? He's already converted a penalty corner today. In the absence of Harmanpreet, would just be sitting outside due to a rolling substitution. It is good Jugraj who steps up. Here's his opportunity. Yerzan is the goalkeeper, and that's in. Jugraj Singh takes India forward. The goals have kept coming for this unit today. They are now 8 goals up. पूरा भारत बस एक ही नारे से गूंज रहा होगा, जुग जुग जियो जुगराज। जिस प्रकार का खेल इन्होंने दिखाया है, एंटिसिपेट जरूर कर लिया था वहां पे गोली यजहान ने कि गेंद उनके बाएं पांव की तरफ आनी है, लेकिन एकदम एक्सट्रीम शॉट खेला था, एकदम पोस्ट पे शॉट खेला गया था। बहुत ज्यादा एरिया नहीं, सिर्फ ग्राउंडेड वो जो स्लैप लगाई जुगराज ने, उसके चलते भारतीय टीम का स्कोर अब 8-0। आज के दिन का दूसरा गोल है इनके नाम। We've just begun the third quarter and India is already 8-0 up. For Kazakhstan, it's extremely difficult for them to bounce back from this kind of a situation. Remember, it's full credit to them, the way they have turned up every day. Now India, is that another chance? In the circle, Mandeep with the ball. Passed it on. Another one. That's in fact thundered in. And it is Rajinder who has managed to get a goal for himself. He wasn't very close to the goal, but then just went for it. Gave it an almighty swing with all his power. He has been on and off the field for a long time, लेकिन यहाँ जैसे ही फील्ड पे थे, टॉप ऑफ द बॉक्स पे थे, एंगुलर और अपना जो नियर पोस्ट है उसका चुनाव करते हुए एक सटीक शॉट खेला, पूरी ताकती। तारीफ बनती है मनदीप की, जैसे 3 डिफेंडर को उन्होंने डॉज देने के बाद गेंद पहुंचाई रजिंदर तक और बाकी बचा कुचा जो कार्य था वो रजिंदर ने कर दिया। क्यों किया नियर पोस्ट का चुनाव? क्योंकि फार पोस्ट पे अगर तो गेंद रिबाउंड पे आती तो आपके पास सुखजीत थे ऑप्शन के लिए। यह है टीम गेम और यह है भारतीय टीम। Now, and Dilpreet has passed it as easy as they come, and Sukhjit is the one who has put that into the goal. Good work by Dilpreet as he found Sukhjit running past the goalkeeper, passed it to him so that India could get another goal. 1-1 किया था, हार्दिक को पास दिया, हार्दिक ने दोबारा गेंद वहां पे पहुंचाई थी। इनफैक्ट ऑलराइट, दिलप्रीत के पास पहले गई है, फिर सुखजीत आए हैं, तो जैसे ही हार्दिक को पुश किया उसके बाद तुरंत देखिए सर्कल के जितना भीतर घुसा जा सकता था घुस गए वहां पे सुखजीत और उसके बाद बचा कुचा कार्य, मोहर लगा दी अपने उस गोल पे। बेहतरीन गोल, दोहरे डिजिट में पहुंच चुका है भारतीय टीम का स्कोर 10-0 सुखजीत सिंह। बहरहाल भारतीय टीम ने जो राग छेड़ी है उसको तो सभी गा रहे। 10-0 का फासला। कजाकिस्तान की टीम खाता खोलने में अब तक रही है असमर्थ। 7.5 मिनट के आसपास का वक्त, एक एरियल जिसे रिसीव कर लिया गया है, फिर पहुंचा है सुमित मनप्रीत को गेंद देंगे। मनप्रीत आगे सर्कल के भीतर चाहेंगे कि विवेक सागर प्रसाद तक गेंद पहुंचे। क्या सुखजीत का आखिरी टच है? विवेक और सुखजीत का तालमेल संभव है भारतीय टीम के लिए काम आया है और 11वां गोल कमा के लाया है। Just when we said that it's been a quiet few minutes, India have got this place alive yet again, and Sukhjit gets another goal. The passing on this occasion was fantastic, and an assist by Vivek Sagar Prasad, which allowed Sukhjit to convert that, put it past Yerzan Yelubayev, the Kazakhstan goalkeeper, and India have now moved to 11-0. क्या तालमेल था विवेक सागर प्रसाद और सुखजीत के बीच में। अच्छा, डिफ्लेक्ट करना था, फार पोस्ट का चुनाव किया है। Lot of stuff happening there in the circle.
India still in a dangerous position, tries to go for that hit and looks like it's a penalty stroke. That is the second penalty stroke awarded to India in this match. राजकुमार पाल ने सीधे कह दिया था कि उनको पेनल्टी स्ट्रोक चाहिए। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली उस तेज तर्रार एक्शन में हुआ क्या। पहले तो अमित रोहिदास का ये अटैक जिसे बेहतरीन तरीके से सेव कर लिया गया था, उसके बाद यहां जब राजकुमार पाल अब मिली है इनको गेंद और इनके स्टिक को रोक लिया गया था, इसी के चलते पेनल्टी स्ट्रोक की मांग की और ये जो गलती हुई थी टेंगिस बेबिताओ से, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा गोलकीपर जहान को। और यहां भी है जुगराज, जिन्होंने आज वैसे भी एक पेनल्टी स्ट्रोक और एक पेनल्टी कॉर्नर लगाया है। क्या तीसरे भारतीय खिलाड़ी इस मुकाबले में बन सकते हैं जिनके नाम हैट्रिक जाएगी? लेट्स वेट एंड वॉच। फिसलबाजी, गोल हुआ। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की दरकार होती है जुगराज जैसे खिलाड़ियों को गोल पोस्ट पे भेजने के लिए, और वही कार्य एक बार फिर किया, लगा दिया इस मुकाबले में हैट्रिक। There's the hat-trick for Jugraj. Yet again, Yerzan Yelubayev, there was nothing that he could do about it. It was fired past him into the left corner. Another success for India. The first goal that they have registered in this fourth quarter. Moving up to 12-0. 7.5 मिनट का खेल बचा और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। सन्नाटा बिल्कुल वैसा है जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे और गणित के टीचर का आगमन होता था क्लास में। जब अटैक पे जा रही है उसके बाद भी स्टैंड से वो चीयर्स सुनाई नहीं दे रही जो शुरुआत में हमें नजर आ रही थी, और इससे पता चलता है कि सिर्फ भारतीय टीम की फैन फॉलोइंग बल्कि इस खेल से कितना प्रेम है राजगीर वासियों को। वो चाहते हैं कि सिर्फ वन साइडेड एनकाउंटर्स आपको देखने को मिले, कहीं ना कहीं कोई ऐसा लम्हा कजाकिस्तान की टीम में निकाल के लाए जिससे लगे कि मुकाबले में कुछ दमखम कुछ जान है। Here's another penalty corner now for India. पहली बैटरी पे भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह, दूसरी बैटरी पे जुगराज और आले दर्जे का खिलाड़ी। परिवर्तन, हरमनप्रीत ने लास्ट मोमेंट पे संजय को कहा है कि आप चाहें तो पहली बैटरी पे आ सकते हैं और संजय आए, गोल किया। क्या बात है, लास्ट मोमेंट चेंज भी काम कर रहा है। इससे पता चलता है कि भारतीय टीम के पास लग्जरी है धुरंधरों की। Now back in the circle towards Dilpreet, and this time it looks like Dilpreet has finally got that goal for himself, and you can see that smile on his face. You can see the smile on the faces of all his teammates. They all have enjoyed that one. ऐसा लग रहा है कि बाकी टीम के खिलाड़ी कह रहे होंगे कि ये दुर्भाग्य जो आपका दिन चल रहा था वो आखिरकार टूटा है। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आई और सबको पता है कि क्यों। कितनी बार मिस किया दिलप्रीत ने, और यहाँ भी पहले अटेम्प्ट में नहीं, रिबाउंड मिला था, उसके बाद सुई में से धागा पिरोया है। ये देखिए, पहले पास साधारण, पहला अटेम्प्ट मिस, दूसरा अटेम्प्ट क्लियर। You can just sense the relief. You can sense that relief on Dilpreet. Look at him just after it went in. Crouched on his stick. And that smile is more relief than anything else. Kazakhstan still have the ball, but given away. Harmanpreet intercepts that one inside the Indian D. Harmanpreet. Now moving forward to Sukhjeet. Sukhjeet on the right corner. Here was the previous penalty corner. Harmanpreet going for it, and good work by Khamit on the goal, and there's the 15. Abhishek gets another goal, and India have now moved ahead to 15-0, equaling what Malaysia had done earlier in the day today against Chinese Taipei. The attack courtesy Sukhjeet from the right, Mandeep passing it on, and Abhishek was in position. The goalkeeper was way offline, so it was quite easy for Abhishek to find the back of the net. Another goal for him. Well, today in general here in Rajgir has been a complete goal fest.
Just a free hit outside the circle. Now Harmanpreet will try to take it in. He does. There was no one to hit that one into the goal. Now we are into the last 20 seconds of this match. The last league match of the Hero Asia Cup. Krishan Pathak, a happy man today. Both him and Suraj Karkera have kept and maintained a clean sheet. Although Kazakhstan had a few opportunities, not a lot to do for Indian goalkeepers, and India stormed through the Super Fours with a clean record in the league phase of the Hero Asia Cup. This is a convincing and dominant 15-0 victory over Kazakhstan here in Rajgir. In terms of statistics, this is a win to remember, but this Indian team knows that the challenge ahead is sterner as they are eyeing glory at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar. Well, for Kazakhstan, the pool stage ends here, of course, and they move into the classification phase. At full time, India 15, Kazakhstan 0. A 15-0 victory for India. Looking at the statistics, 29 shots on goal for India, 15 converted, and Kazakhstan had 5. Circle penetrations, 45 by India, 58% possession.